हाँ जी बेटा, गेटवे टू इंग्लिश चैनल ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਬੇਸਡ ਜੋ MCQs ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਥੀਅਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂ ਫਰੇਮ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜੇਕਰ ਬੇਟਾ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਰੀਅਡ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣਾ LED ਤੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਥਿਊਰੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ MCQs ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਓਰੀਐਂਟਡ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟਸ ਆਰ ਦ ਮੈਸੇजेस ਕੈਰੀਡ ਇਨ ਮੀਡੀਆ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ, ਰੇਡੀਓ ਐਂਡ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟਸ ਕੀ ਨੇ? ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਦੇ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਸੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਰਾਹੀਂ, ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਟੂ ਪਰਸੂਏਡ ਪੀਪਲ ਟੂ ਬਾਏ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਔਰ ਸਰਵਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ, ਉਸ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਲੈਣ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰਸੂਏਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਖਰੀਦੋ ਜਾਂ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟਸ ਪਲੇ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਇਨ ਦ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟਸ ਕੀ ਮੇਨ ਵਧੀਆ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ they should be drafted in such a manner that they tempt the reader to go through them even if the reader has no desire to buy the product। ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, they should be drafted in such a manner, ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾਫਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਹੈ, ਕਿ they tempt the reader ਕੋ ਪਾਠਕ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟੈਂਪਟ ਕਰ, ਲਲਚਾਉਣ, to go through them ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਈਵਨ ਇਫ ਦ ਰੀਡਰ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਟੂ ਬਾਏ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਪਾਠਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸਟਾਈਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ। ਹੈਡਿੰਗ ਇੰਨਾ ਕੈਚੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਟਰੈਕਟਿਵ ਹੋਵੇ ਹੈਡਿੰਗ, ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਠਕ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਪੜ੍ਹੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਪਵੇ, ਅਚਾਨਕ ਵੀ ਧਿਆਨ ਪੈ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟਸ ਵੈਸੇ ਨਾ ਬੇਟਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਡਿਸਪਲੇ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲੇ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੇਟਾ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲਾਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੂਰਾ ਪੇਜ ਕਵਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਾਫ ਪੇਜ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਪਲੇ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟਸ ਡਿਸਪਲੇ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਫਲੀ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਬੇਟਾ 10th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਾਸੀਫਾਈਡ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟਸ ਨੇ, ਡਿਸਪਲੇ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟਸ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਐਨ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸਿੰਪਲ ਐਂਡ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵਰਡਡ ਆਰਟਿਸਟਿਕਲੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਕੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਟ ਇਜ਼ ਪਲੇ ਆਫ ਵਰਡਸ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜੋ ਵਿਗਿਆਪਨ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਂਡ ਦ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਰ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਗਿਵਨ ਇਨ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ, ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਤੇ MCQs ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਨੇਮ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜੋ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਜੋ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ, ਬਲੋਕ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖੋ these days no one has the time or patience to go through the lengthy write-ups।
अजकल किसी को बेटा इन्ना टाइम नहीं है कि बड़ी बड़ी जो राइट अप्स ने उन्होंने पढ़े, ठीक है, ज़्यादा समा किसी को नहीं होंदा, ठीक है। सो आपां भी इत्थे जो वीडियो देखो इस करके ज़्यादा लंबी नहीं बनाउंदे क्योंकि समा घट हुंदा है। सो इस करके एडवरटीजमेंट भी ब्रीफ हुंदी है ताकि लोग उसनूं जल्दी जल्दी पढ़ सकन, ठीक है। द एडवरटीजमेंट शुड बी देयरफॉर ब्रीफ, इस करके आप कहने भी जो एडवरटीजमेंट है वो की होनी चाहिए है, ब्रीफ होनी चाहिए है, ठीक है। सो एक एग्जाम्पल आप देखेंगे, उस तो बाद बेटा MCQs करांगे। जे वीडियो जो लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक जरूर कर दो। सो एक देखो एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल है देखो ਇਹ ਨਾ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਉਹ TV ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਲਈ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਪੈਕੇਜ ਅਵੇਲੇਬਲ आज़ाद ट्रैवल एजेंसी है, देखो ये दस्या कि कैपिटल लैटर के लिखा हुआ है नाम, ठीक है, इसका कैपिटल च लिखा है। उस तो बाद देखो जो इसका नेम है एडवरटीज़र का अशोक गुप्ता, ये भी देखो कैपिटल के लिखा हुआ आपने, ठीक है। इत्थे अपनी जो कंटैक्ट की जो है जरूर देना होंगे इस दे। होर देखो ध्यान रखने वाली गल, देखो इत्थे किते भी आपको डेट नज़र नहीं आ रही हैगी, ठीक है, किते भी डेट नज़र नहीं आ रही, तो इसका मतलब है कि इस दे आप डेट नहीं लिखते, डेट लिखने की कोई जरूरत नहीं होंगी। होर देखो इस सैल्यूटेशन किते नहीं है, सैल्यूटेशन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੈਲੂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਐਡਵਰਟੀਜ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੌਂਗ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਫਰੇਜ਼ਿਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ठीक है बेटा। वर्ड तो फ्रेज के थोड़ा डिफरेंस होता है। वर्ड एक आ चीज़ देखो, एक वर्ड है ये, ठीक है, जो 2-3 वर्ड्स नू यूज़ करके आप कोई सिंगल मीनिंग सेंस बनाते हैं उसनूं आप फ्रेज कहते हैं। फ्रेजिज ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं जो आप एडवरटीजमेंट लिखते हाँ। सो बाकी गल्लां जो MCQs के अपनियां क्लीयर होणगियां, आओ आप हुण MCQs जो है डिस्कस करांगे, ठीक है। शाबाश, आओ जल्दी जल्दी आप डिस्कस करते हैं। हुण देखो वट इज़ द मोटिव ऑफ एन एडवरटीजमेंट, एडवरटीजमेंट का उद्देश्य की है, उद्देश्य की है आप पढ़िया। पहला देखो तुसी देखो, टू इन्फ्लुएंस पीपल, लोगों को प्रभावित करना, टू प्रमोट द सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की जो सेल नूं वधाउणा, बोथ A एंड B, नन ऑफ दीज, दोनों ठीक ने या इन्हां विचों कोई भी ठीक नहीं है, ठीक है। इत्थे तुसी समझ ही गए होवोगे आंसर की बन गया बेटा, C आंसर है, बोथ A एंड B दोनों ठीक ने। इन्फ्लुएंस भी करना होंदा पीपल नूं, लोगों नूं प्रभावित करना होंदा, तां ही तो लोग चीज़ खरीदणगे हो या सर्विस लैणगे हो, ठीक है। तो अपने प्रोडक्ट की सेल नूं वधाउणा भी इसका परपस हुंदा है, ठीक है। अगे देखो, एन एडवरटीजमेंट इज़ अ डैश अनाउंसमेंट, एडवरटीजमेंट किहड़ी तरह की अनाउंसमेंट है, प्राइवेट, पब्लिक, पर्सनल, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। कि किस तरह की एडवरटीजमेंट है बेटा, ये पब्लिक एडवरटीजमेंट है, की है पब्लिक एडवरटीजमेंट, यानी कि सारे लोगों को आप दसना चाहते हैं उस एडवरटीजमेंट राही भी ये प्रोडक्ट है साडा, इसमें तुसीं खरीद सकते हो, ये इसका रेट है, इस थां ते मिलेगा, ठीक है। देखो नैक्सट, नेम ऑफ द प्रोडक्ट शुड बी इन डैश लैटर्स, प्रोडक्ट का नेम बेटा किहड़े लैटर्स दे विच लिखिया जाना चाहिए है, इसका आंसर होएगा अपने कोल ए आंसर है, ब्लॉक लैटर्स दे विच लिखिया जाना चाहिए है। किहड़े लैटर्स दे विच, ब्लॉक और वी कैन से कैपिटल लैटर्स, ओके। नैक्सट देखो, नेम ऑफ द एडवरटीजर शुड बी गिवन इन डैश, किस तरह जो है दिता जाता एडवरटीजर का नाम किस तरह दिता जाता है, स्क्रिबल्ड लैटर्स के विच, ब्लॉक लैटर्स के विच, ब्लॉक लैटर्स के दिते जाते हैं, B ऑप्शन जो करैक्ट है, ठीक है। ब्लॉक लैटर्स के विच जो है दिता जाना बेटा चाहिए है, इस करके इसका ऑप्शन जो है B करैक्ट है, B ब्लॉक लैटर्स, ठीक है। नैक्सट देखो, एन एडवरटीजमेंट इज अ डैश ऑफ वर्ड्स, एडवरटीजमेंट एक की है, किस शब्दों का की है, शब्दों का की है बेटा प्ले है, D ऑप्शन करैक्ट है, डांस नहीं है, फन नहीं है, बोथ एंड बी इन्हां च कोई नहीं है, प्ले है। जो एडवरटीजमेंट है वो की है, शब्दों की खेड है बेटा, ठीक है। अगे देखो, वन मस्ट ऐड डैश एट द एंड ऑफ एन एडवरटीजमेंट, एडवरटीजमेंट के एंड ते जो है व्यक्ति को की लिखना चाहिए है, की लिखना चाहिए बेटा, थैंक्स, डियर, कंटैक्ट डिटेल्स। थैंक्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, डियर लिखने की कोई जरूरत नहीं, वेलकम लिखने की कोई जरूरत नहीं, कंटैक्ट डिटेल्स जो है जरूर लिखनिया होंदियां ने, ठीक है। आपां देखिया सी हुण पिछे देखो इस दे विच एडवरटीजमेंट का जो एग्जाम्पल आपां देखिया है, इस दे विच देखो कंटैक्ट डिटेल्स दी हुई है, कंटैक्ट लिख के डिटेल्स दी हुई जरूरी होंदी है देनी, ठीक है। सो इस करके इसका आंसर बेटा आ जाएगा कंटैक्ट डिटेल्स, यानी कि C ऑप्शन इसका करैक्ट है, ठीक है। एडवरटीजमेंट इज शुड बी डैश, एडवरटीजमेंट होनी चाहिए किवें दी, ब्रीफ एंड सिंपल, टू द पॉइंट, इन डिटेल, बोथ A एंड B, इसका आंसर बेटा D हो जाएगा, बोथ A एंड B, यानी कि एडवरटीजमेंट है ब्रीफ एंड सिंपल होनी चाहिए है, सेकेंडली टू द पॉइंट होनी चाहिए है, ठीक है, इन डिटेल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। नैक्सट देखो, शुड एडवरटीजमेंट बी प्लेस इन अ बॉक्स, बॉक्स के लिखी जानी चाहिए है, ऑफ कोर्स यस आंसर है इसका A ऑप्शन इज करैक्ट ऑप्शन हेयर, ओके, क्योंकि बॉक्स के ही लिखी जाती है। अगे देखो,
इन एन एडवर्टीजमेंट नेम एंड एड्रैस ऑफ द कंपनी आर डैश डिटेल्स। एक एडवर्टीजमेंट ਦੇ ਵਿੱਚ जो नेम ਤੇ एड्रैस है कंपनी ਦਾ ਉਹ किस तरह ਦੀ डिटेल्स ने, यूजलैस ने, नो, इसेंशियल ने, यस, इसेंशियल यानी कि मतलब मैंडेटरी यानी कि ज़रूरी ने, उसका नाम जो है एडवर्टीजर का आपां नूं देना पऊगा, एड्रैस जो है देना पेगा उस दे विच, ठीक है। अगे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू राइट एन एडवर्टीजमेंट, इन्हां विचों किहड़ी चीज़ वरती जाती है जो आपां एडवर्टीजमेंट लिखते हाँ। कैची फ्रेजिज, कंपलैक्स सेंटेंसिस, डायरैक्ट स्पीच, नेगेटिव सेंटेंसिस। इसका ऑप्शन बेटा ए करैक्ट है। कैची फ्रेजिज आपां ने यूज़ कर, कैची मतलब जो अट्रैक्टिव, ध्यान नूं अट्रैक्ट करते हैं, इस तरह के शब्दों की फ्रेजिज की वर्ड्स एंड फ्रेजिज की अपने इस यूज़ करना, फ्रेज ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं, ये ध्यान रखनी है गल, ठीक है। सो ए ऑप्शन इसका करैक्ट है। क्लीयर। तो कंपलैक्स सेंटेंस नहीं लिखने होंगे, डायरैक्ट स्पीच के कदे नहीं लिखना होंगे, नैगेटिव सेंटेंसिज नहीं लिखने होंगे इस ज़्यादा, ठीक है। सो कैची फ्रेजिज लिखे जाते बेटा एडवर्टीजमेंट के, ये ध्यान रखेंगे आप। वट इज़ द वर्ड लिमिट ऑफ अ क्लैसीफाइड एडवर्टीजमेंट, क्लैसीफाइड एडवर्टीजमेंट की बेटा वर्ड लिमिट कितनी है, किन्ने शब्द लिखने चाहिए ने, किस तो किन्ने शब्दों तो वध ना जाए, ठीक है। ये जो है अपना ऑप्शन इसका डी करैक्ट है बेटा, यानी कि 50 वर्ड्स तो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एडवर्टीजमेंट, ठीक है। ओके आगे देखो वट मेक्स अ क्लैसीफाइड एडवर्टीजमेंट परफेक्ट, परफेक्ट की बनाती है इसनों क्लैसीफाइड एडवर्टीजमेंट में, किहड़ी चीज़ है जो परफेक्ट बनाती है। वैल रिटन फ्रेजिज, वधिया फ्रेज लिखे होण, कैची हैडिंग होना चाहिए है, क्लीयर होन डिटेल्स, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, सारे ही ठीक ने। वैल रिटन भी होने चाहिए ने फ्रेजिज, कैची हैडिंग होना चाहिए है ताकि लोग देखते सारी, ठीक है, रीडर का ध्यान जो अट्रैक्ट कर लवे, तो डिटेल्स बिल्कुल क्लीयर होनी चाहिए ने सारियां, ठीक है। आगे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन इन एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट के इन्हां विचों किहड़ी चीज़ लिखी जानी चाहिए है, डेट लिखनी चाहिए है, बिल्कुल नहीं लिखनी चाहिए, हैडिंग लिखना चाहिए है, हैडिंग बिल्कुल लिखा जाना चाहिए है, बी ऑप्शन करैक्ट है। इस दे विच जिहड़ा बेटा डेट जो है आपां ने नहीं लिखनी, डेट कोई इस दे विच मायने नहीं रखती हैगी, सैल्यूटेशन की कोई जरूरत नहीं हैगी, हैडिंग जो है जरूर लिखना होंदा है, बी ऑप्शन इज करैक्ट है। नैक्सट पिक द ओड वन आउट इन कंटैक्सट ऑफ एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट के संबंध में देखो भी इन्हां चों अलग किहड़ी चीज़ है, हैडिंग, बॉडी, सैल्यूटेशन, फ्रेजिज। सैल्यूटेशन जो है इस दे विच बेटा अलग है, ओड है, क्योंकि एडवर्टीजमेंट के बेटा सैल्यूटेशन की कोई जरूरत नहीं होंदी, सैल्यूटेशन की कोई जरूरत नहीं होंदी, सी ऑप्शन जो है करैक्ट है इस दे विच, ठीक है। ये अलग चीज़ है, हैडिंग चाहिए होंदा है, बॉडी होंदी है इसकी, तो फ्रेजिज भी होंदे ने, ठीक है। नैक्सट देखो विच टेंस इज यूज इन राइटिंग एडवर्टीजमेंट, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जो आप एडवर्टीजमेंट लिखते हैं उदों उसनूं किहड़े टेंस लिखा जाना चाहिए है, पास्ट एंड फ्यूचर, प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट एंड प्रेजेंट। इसका आंसर बेटा बी है, बी इज करैक्ट आंसर, क्योंकि इसनूं की है प्रेजेंट टेंस दे विच लिखा जाना चाहिए है, किहड़े टेंस विच लिखा जाना चाहिए बेटा, प्रेजेंट टेंस दे विच लिखना चाहिए, बी ऑप्शन करैक्ट है, ठीक है। आगे देखो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच प्रोनाउन इज यूज्ड वाइल राइटिंग एन एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट लिखते समय किहड़े प्रोनाउन की वरतों की जानी चाहिए है, आई, वी, दे, नन, कोई प्रोनाउन भी यूज नहीं करना होंगे, इस कोई भी प्रोनाउन यूज नहीं करना होंगे बेटा। सो ये सी बेटा अपने एडवर्टीजमेंट बेस्ड MCQs थीरी सैक्शन भी तुसीं सुनिया, तो वीडियो उम्मीद करता वधिया लगी होगी। सो वीडियो को लाइक कर दो बेटा, वध तो वध शेयर करो ताकि हरेक स्टूडेंट को वीडियो पहुँचे। सो राइटिंग सैक्शन के जो ऑप्शन फस्ट टर्म लिए बेटा तुहाडे कोल हैगे सीगे वो आपां कंप्लीट कर चुके हैं। एडवर्टीजमेंट हो गई, अपना मैसेज राइटिंग हो गया, नोटिस राइटिंग भी हो चुका है। वीडियोज़ अपने चैनल गेटवे टू इंग्लिश से पईयां ने, अलग अलग बेटा प्ले लिस्ट्स बनिया हुई ने, तुसीं प्ले लिस्ट खोलिया करो, ठीक है। 10th क्लास की प्ले लिस्ट बनी हुई है, 8th क्लास की प्ले लिस्ट है, नैस के एग्जाम लिए जो अलग प्ले लिस्ट बनी हुई है, टेंसिस की अलग है, इस तरह हरेक टॉपिक वाइज बेटा प्ले लिस्ट बनी हुई ने चैनल पर, तुसीं उन्होंने देखो तो लाभ लो, इसका फायदा उठाओ, तो वध तो वध शेयर करो ताकि सारे ही पंजाब दे विच अपने विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। सो मेरे नाल जुड़े रहना, इस तरह की होर वीडियोज़ भी तुहानूं इस चैनल पर मिलदियां रहणगियां। सो अज लई इन्ना ही बहुत है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।